Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is December 1, 2020, Tuesday. Inspiration of the day is whatever you decide to do, make sure it makes you happy. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Jet Airways may resume flights in summer of 21. Mr. Murari Lal Jalan, actually, who is the businessman who is leading the winning consortium for JET, and is also planning to hold more than 51% stake into JET Airlines. So, Jet Airways India Limited is an Indian international airline based in Mumbai, which was grounded in April 2019 as it ran out of cash. If we talk about the little bit history of Jet Airways, this airways was the largest commercial passenger airline in India with passenger market more than 22% from the third quarter of 2010 onwards. And with its competitors mainly SpiceJet and Indigo lowering ticket fare in the following year, and this lowering of ticket fare forced to follow the suit, and this hurts the overall performance of Jet Airways and resulted in steep financial losses. And because of this financial losses, it dropped to the second place behind the Indigo in October 2017 with less than 18% market share. And after that, this downward trend continued and resulted into the bankruptcy of Jet Airways. And even in the month of April 2019, Jet Airways was not able to get the emergency funding. So all of its fleet were grounded at that time. जेट एयरवेज की बहुत गोल्डन हिस्ट्री रही है, अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मार्केट शेयर इसके पास इनिशियली रहा है. इवन विस्तारा की फाउंडिंग से पहले जेट एयरवेज वाज द ओनली other full service airlines of India apart from Air India. But after the intense competition from SpiceJet, Indigo and other low-cost carriers, Jet Airways has started getting tough competition. Currently, this debt-laden company is owned by consortium of creditors that actually hold 51% stake into this airlines, and the new owners of Jet Airways are actually planning to revive this aviation company. तो जिसको लेकर मिस्टर मुरारी लाल जलान ने कहा है कि Jet Airways is actually planning to operate its full-fledged service airline with a strong presence in domestic market. और इसके अलावा domestic market के अलावा Jet Airways will also try to connect the prominent European and West Asian cities with Delhi, Mumbai and Bangalore. तो कुछ international flights को भी operate करने की planning चल रही है, and it is more likely that this particular operation will start into the summer of 2021. And in the very same consortium of Jet Airways, around 40% will be held by London-based financial advisory firm, that is Calrock Capital. And while other lenders will keep close it to 10%. So 51% by consortium, 40% or around 40% will be held by Calrock Capital, and other lenders may keep it close to 10%. And this consortium is actually planning to revive the jet. And for this, consortium has proposed to invest approximately 1,000 crore into this debt-laden company, and the new owners are expected to infuse more money after the regulatory clearance. तो कुछ regulatory और ऑफिशियल क्लियरेंस के बाद हो सकता है कि जेट एयरवेज में और ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ किया जाए. इवन जो कंसोर्शियम के इंडिविजुअल्स हैं जस्ट लाइक जलान, मिस्टर जलान, उनका ये कहना है कि देयर इज़ नो लैक ऑफ फंडिंग. जेट एयरवेज के लिए फंडिंग की ऐसी कोई कमी नहीं है, जितना फंड चाहे उतना फंड रेज कर सकती है जेट एयरवेज, बट इट रिक्वायर अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू ऑपरेट इनटू दिस इंटेंस कॉम्पिटिटिव एरा इवन आफ्टर पोस्ट कोविड. अगर मिस्टर जलान की बात करें तो ही एक्चुअली ओन द डाइवर्स बिजनेस रेंजिंग फ्रॉम paper trading to real estate across Russia, Uzbekistan, UAE and India. With a such diverse business standard or the interest, Mr. Jalan has already started
meeting with the policymakers, aircraft manufacturers, vendors, and others in order to assure the other shareholders that there will be no dearth of funding to revive this. Airline sources are actually reporting to business standard. So currently Jet Airways has 4-point agenda. First, Jet plans to become the full service airline with the hubs in Delhi, Mumbai and Bangalore. Second, to connect the European capitals. Third, in talk with government to get the back slot and bilateral rights into aviation. And the fourth and one is to stay listed on stock exchanges. Although अभी तक जेट एयरवेज स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट नहीं हुई थी, तो अभी भी कंसोर्शियम का या जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनका ये फोकस है कि जेट एयरवेज को डिलिस्ट ना किया जाए एंड इट विल स्टे listed on stock exchanges. And this is the BSE price in rupees. तो जेट एयरवेज के स्टॉक्स के प्राइजेस हैं since March 31 to November 27. Actually, Jet Airways is betting on the future. So let's see what will happen, whether Jet Airways will be successful or the consortium will be successful in getting its market share back. अब देख लेते हैं next article. Finance Ministry proposes DFI tag for IIFCL. इंडिया की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टैग प्रपोज किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए, जिसको IIFCL भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. So Department of Financial Services has prepared a cabinet note to give DFI status to IIFCL. तो कैबिनेट में डिस्कशन के बाद अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है कैबिनेट के थ्रू, इसके बाद इस प्रपोजल को पार्लियामेंट का भी अप्रूवल रिक्वायर होगा. इसके लिए एक बिल के फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इनटू इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड. हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर्टिकुलर टैग को लेकर के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, बट इट इज़ मोर लाइकली दैट IIFCL विल गेट द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टैग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इससे क्या होगा, अगर IIFCL को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का टैग मिल जाएगा तो इससे बेसिकली क्या हेल्प होगी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने में. तो इस पूरे इवेंट को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा बेसिकली IIFCL है क्या एंड व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ IIFCL एंड व्हाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग टू give this development finance institution tag to IIFCL. IIFCL is a government owned entity which is registered as a non-deposit accepting loan company with RBI. तो ये स्टूडेंट याद रखेंगे, it is a government owned entity registered with RBI, that is Reserve Bank of India. And this particular entity was set up in financial year 2006, is the only state-owned financial institution that lends to all types of infrastructure sub-sectors. And if this IIFCL has been converted or given the tag of development finance institution, in that case, it will be easy for Indian Infrastructure Finance Company Limited to borrow the money at a very lowest cost, or the cost of borrowing for the long-term infrastructure projects will reduce sharply. And at a time when the government has planned approximately 100 trillion worth of infrastructure investment under National Infrastructure Pipeline for the financial year 2020 to 25. तो जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है 100 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो उस केस में अगर IIFCL को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI का टैग मिल जाता है तो IIFCL के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगी तो इसका मतलब IIFCL को फंड रेज करने में, फंड एलोकेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. जितने कम बोरोइंग से, जितने कम खर्चे में वो फंड रेज कर पाएगी, उतना ईजिली वो फंडिंग या लोन ग्रांट कर पाएगी टू ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स.
तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में वो ईजिली एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि जनरली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत टाइम तक लिंगर ऑन होते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड और लैक ऑफ लिक्विडिटी। जिस भी फॉर्म में, चाहे कंट्रेक्चुअल फॉर्म में, चाहे ट्रिपल फी मॉडल ले लें हम या हम मॉडल ले लें, कोई भी मॉडल हो, फाइनेंस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंडिंग रेज नहीं कर पाते, और जब फंड्स नहीं अवेलेबल नहीं होता उनके पास तो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो उससे क्या होता है, एक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, दूसरा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जो फोरकास्टेड कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक जो डेफिनेट टाइम पीरियड है उसमें कंप्लीट नहीं होगा तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि IIFCL को DFI का टैग ग्रांट कर दिया जाए। Basically, road, power, port, urban infrastructure, airports are the 5 most important sector for which IIFCL lend। तो अगर IIFCL को DFI का टैग मिल जाता है तो इन पांचों सेक्टर में जो लिक्विडिटी क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, फंड का क्रंच है, वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, रिलैक्स होगा। तो रोड, पावर, पोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं या ऐसे प्रोजेक्ट जो सेंक्शन हो गए हैं बट स्टार्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड, वो सब रिज्यूम हो जाएंगे। एंड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिजम्पशन में also and will also create the employment, and employment generation is one of the very important focus after post COVID era। और अगर हम थोड़ा DFI टैग की बात करें तो FCI was the first DFI to be set up in India back in 1948, and which is now classified as systematically important non-banking financial company। And after that, banks began lending to infrastructure firm in the past 2 decades, edging out of all DFIs, which become unviable for DFIs to survive। Even in past few years, ICICI, IDBI, which started as DFIs, and later all these DFIs were converted into banks, while sector specific DFI still exists, just like Export and Imports Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, and Small Industries and Development Bank of India, to name a few। बट अगर हम फोकस देखें, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, सिडबी है, इन सब का बेसिक फोकस जो है वो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए या उनकी फंडिंग के लिए स्पेशली अभी तक कोई DFI नहीं आया है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है कि अगर IIFCL को DFI का टैग मिल जाएगा तो IIFCL के लिए फंड रेजिंग और फंड एलोकेशन दोनों की ही प्रोसेस आसान हो जाएगी, और जो लिक्विडिटी क्रंच से ऑलरेडी सफर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनको भी स्टार्ट करने में, रिज्यूम करने में आसानी होगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंडियाज 10-year growth lacks Asia EM peers। A lower than expected deadline in gross domestic product during the September quarter might do little to narrow the widening economic gap between India and its peers in Asia and other emerging market, that is EMs। And if we see the data collected from International Monetary Fund and the World Bank, we can easily decipher that India is one of the laggards in terms of GDP growth since last decade into Asian markets। This is the data collected from International Monetary Fund and World Bank। This data is on decadal growth in GDP per capita in terms of dollar। तो जो ये dark gray bar है, that indicates a period of 2000 and 2010, and this light gray bar indicates the period from 2010 to 2020। And here data is compiled for Bangladesh, China, Vietnam, East Asia, Nepal, ASEAN, major EMs, India and Pakistan, Indonesia। So between financial year 2010 and 2020,
India's per capita GDP at current prices in dollar terms grew at a compound annual growth rate, that is also called as CAGR, of 3.1% against the 9.2% annualized growth of China, 7.9% of Vietnam, 7.4% in East Asia and Pacific countries, 3.3% growth in major emerging markets according to the data revealed by International Monetary Fund, that is IMF and World Bank. तो जो लास्ट डिकेड रहा उसमें भी पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइस के पैरामीटर में इंडिया की जो ग्रोथ परफॉर्मेंस रही वो अपने पीयर्स जो कंट्रीज़ हैं या जो काउंटर पार्ट कंट्रीज़ हैं या जिन्हें कह लें जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनके कंपैरिजन में वर्स्ट रही. जो वर्ड यूज हुआ है लेगार्ड्स मीन्स सुस्त, धीमा. We can call it sluggish, slack, slow. All are the synonyms of this word laggards. So laggards means India, Asia में जितने भी countries हैं जो emerging markets या emerging economies हैं उनके comparison में इंडिया की last decade की performance बहुत ही खराब रही है या पुअर रही है, हम ये कह सकते हैं. And this data is compiled only for emerging market इमर्जिंग इकोनॉमीज. अगर हम देखें तो जितने भी हाई इनकम कंट्रीज हैं उनका डेटा कंपाइल नहीं किया गया है. ऑल्दो इंडिया वाज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स इन द प्रीवियस डिकेड्स विद एनालाइज पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ ऑफ 9.5%. तो अगर हम बोलें जो प्रीवियस डिकेड रहा है, इससे पहले का जो डिकेड रहा है यानी फाइनेंशियल ईयर 2000 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2010 तक का जो डेटा रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी रही. इंडिया वॉज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज. लेकिन जो लास्ट डिकेड रहा है हमारा यानी फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेकर 20 तक उसमें इंडिया अपने सारे काउंटर पार्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया का डायरेक्ट कंपटीशन होता है जैसे लाइक चाइना, वियतनाम, उन सब से परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत ज़्यादा डिक्रीज रही है और जैसा कि हमें ग्राफ से भी दिख रहा है. इवन कई सारे केसेस में फोरकास्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया की परफॉर्मेंस या इंडेक्स में ऐसा भी बताया गया है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की परफॉर्मेंस और ज़्यादा खराब हो सकती है इन कंपैरिजन टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये याद रखेंगे दिस पर्टिकुलर डेटा इज ऑल अबाउट जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ. इट इज़ नॉट जीडीपी ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ. तो बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा होता क्या है? अगर हम बात करें पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेट्रिक दैट ब्रेक्स डाउन अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन. And simple, we get it by dividing the GDP of a country by its population. तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये हमें लैगार्ड्स देखने को या स्लगिश या स्लैक देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज. बट हेयर एग्जाम्पशन इज अगेन चाइना. चाइना की पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है. देन वाई चाइना इज परफॉर्मिंग गुड एंड चाइना हैज़ परफॉर्म्ड गुड इन टू लास्ट 2 decades इन कंपैरिजन टू इंडिया. और जैसा कि हमें क्लियर दिख ही रहा है जो प्रीवियस डिकेड है यानी फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2010 तक उसमें इंडिया का पर कैपिटा जो जीडीपी ग्रोथ रहा दैट वाज 11.9% और जो इमीडिएट डिकेड गया यानी 2010 से 2020 उसमें इंडिया का ग्रोथ इन जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ डॉलर रहा है 3.1% एंड दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू ऑल अदर काउंटरपार्ट इकोनॉमीज. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. मॉडर्ना वैक्सीन 100% इफेक्टिव इन सीवियर केसेस. लास्ट वीक में हमने डिफरेंट वैक्सीन जो डेवलप करी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट इंस्टीट्यूट से उनकी एफिकेसी की बात हमने करी थी. आज के न्यूज़ में मॉडर्ना जो कंपनी है उसकी वैक्सीन के बारे में बताया गया एंड द डेटा इंडिकेटेड or submitted by Moderna indicates that the vaccine is 100% effective in case of severe cases. अगर आपको याद हो तो कोविशील्ड और स्पुतनिक के जो भी डेटा सबमिट हुआ था दैट वाज फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस बट मॉडर्ना की जो वैक्सीन है दैट वाज इफेक्टिव इन केस ऑफ severe cases as well and the efficacy of this particular vaccine is 100%. So the primary analysis with 196 cases finds it 94.1% effective and unlike other vaccines this particular vaccines worked well in older and younger adults also.
जो प्रीवियस जो वैक्सीन थी वो चिल्ड्रंस पे या जो यंग पॉपुलेशन थी उन पर ज़्यादा इफेक्टिव थी, बट दिस मॉडर्ना वैक्सीन इज सेम and is worked well in case of older population as well. तो जो भी डेटा मॉडर्ना ने सबमिट किया है, यूएस एफडीए विल रिवाइज दैट पर्टिकुलर डेटा एंड स्क्रूटिनाइज दैट पर्टिकुलर डेटा at the public meeting on December 17. And once the firm will get approval or the clearance for its coronavirus vaccine in United States and Europe, the firm may ship approximately 20 million doses by the end of year to other economies. And after this particular data submission, the Moderna stock prices into Nasdaq has been increased by 15.32%. So it is a good news if this particular vaccine is actually effective for older generation or the older population, unlike other vaccines. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. आफ्टर फर्टिलाइजर गवर्नमेंट मे नाउ रिव्यू आउटले ऑन फूड सब्सिडी. तो इस पर्टिकुलर बजट ईयर के लिए जो भी एलोकेशन किया गया था फूड्स के लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, वो सारी सब्सिडी हमें कह सकते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया, जो भी एलोकेशन गवर्नमेंट ने किए हैं इन केस ऑफ फूड एंड अदर रिलेटेड एरिया, वो सब्सिडी का जो एलोकेशन हुआ उसका अप्रॉक्सीमेटली 90% या 100% यूज़ हो चुका है. तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी हाइक कर दी है इस पर्टिकुलर बजट ईयर के लिए, और आफ्टर हाइकिंग द फर्टिलाइजर सब्सिडी द सेंटर में हैव टू टेक अ री लुक एट द फूड सब्सिडी आउटले, जिसका 91% एलोकेशन ऑलरेडी 7 मंथ में एग्जॉस्ट हो गया है. तो अगर गवर्नमेंट अपनी आगे आने वाली स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अदर फूड सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स को ऑपरेशनल रखना चाहती है, तो इन दैट केस दिट इज अ टाइम दैट गवर्नमेंट हैज नाउ टू एलोकेट मोर फंड इन केस ऑफ फूड सब्सिडी. So extending the free fruit gain scheme would have added on the government spending pressure amid bleak revenue outlook and a higher capital expenditure going forward. तो फर्टिलाइजर के केस में सब्सिडी हाइक करिए, तो एक्सपर्ट्स आर नाउ सेइंग इट इज अ टाइम टू हाइक द आउटले इन केस ऑफ फूड सब्सिडी एज वेल, बिकॉज 91% हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड. ऑल्दो जो फ्री फूड गेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है अंडर PMGKAY, दैट इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो फिलहाल इस पर्टिकुलर मंडे यानी आज वो ख़त्म हो रही है उसकी डेडलाइन. तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्कीम को एक्सटेंड करती है कि नहीं, हालांकि इस पर अभी भी टॉक चल रही है कि हो सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम को आगे आने वाले टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, बट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडिंग दिस स्कीम. बट एक्सपर्ट्स और अदर इकोनॉमिस्ट आर एक्चुअली सजेस्टिंग दैट गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड this scheme for upcoming 2 months as well in order to support the marginalized and poor section of the society into this second wave of COVID-19. तो अगर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम की डेडलाइन को और एक्सटेंड करती है, स्कीम को और एक्सटेंड करती है आफ्टर मंडे, तो हो सकता है गवर्नमेंट जो फूड सब्सिडी में जो एलोकेशन हुआ है उस एलोकेशन को दोबारा से रिवाइज करे, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड करने पर गवर्नमेंट पर और ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बढ़ेंगे और ज़्यादा रिवेन्यू की ज़रूरत होगी FCI को. तो कैसे गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट करती भी है कि नहीं करती, इट मीन्स फूड सब्सिडी बढ़ाती है, उसका एलोकेशन बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती, दैट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. The link for all has been given under description box. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.